الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصي نعم العدلون ولا يعد حق المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس على صفته عبد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود قدر الخلائق بقدرته نشر رحمته والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين سيدنا نبينا مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین ایک صلوات دیتی عظمت آل محمد پر آپ ذرا سے گزارش ہے کہ جو لوگ جہاں جہاں ہیں سب جانتے ہیں کہ حاجی حسن صاحب اس جلوس کو اپنے دل و جان سے زیادہ چاہتے تھے اور حق بھی ہے حسینیت کا کہ انسان حسین کے پروگرام کو اپنے دل و جان سے زیادہ چاہے اس لیے ہمارا آپ کا حق بنتا ہے کہ ہمارا اس تاریخ پر ان کو ایک سورہ فاتحہ سے ضرور یاد کریں آپ ذرا سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ مرحوم ہادی حسن ابن انور حسین کے روح کو حساب فرماتے ہیں ایک صلوات مجھے عظمت آل محمد پر برادران عزیز عزاداران میں سید الشہداء آج خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے قبر پر یہ کہا جائے اپنے مقبرے پر حسینیت کا نام لکھوا کر ساری دنیا کو خواجہ معین الدین چشتی نے بتا دیا کہ میں حسینی ہوں شاہ است حسین حسین بادشاہ ہیں دین است حسین حسین دین کی پناہ ہیں شاہ است حسین بادشاہ شاہ است حسین حسین شاہ ہیں حسین بادشاہ حسین دین کی پناہ ہیں اور یہ جو جلوس نکلتے ہیں یہ فتح کی نشانی ہے جلوس جو نکل رہے ہیں یہ آپ یہ نہ سوچئے آج ہندوستان نہیں پوری دنیا کے کونے کونے میں جلوس نکل کر کے فتح کی نشانی بتایا جا رہا ہے اس دور میں کہا جا رہا تھا ایک باغی ہے جس کو کربلا میں لایا گیا ہے آج اس باغی نے اپنا پرچم ایسا لہرایا کہ کوئی ملک کی حکومت ایسی نہیں ہے جو حسین کے پرچم پر روک لگا سکے کسی بھی ملک کی پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ کسی بھی ملک کی حکومت ایسی نہیں ہے جو حسین کے پرچم پر روک لگا سکے اسی لیے خواجہ معین الدین چشتی نے کہہ دیا شاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین حسین دین کی پناہ ہے ابھی کچھ دن پہلے الیکشن ہوا تھا الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ مختلف قسم کے کینڈیڈیٹ ارے بھائی یہ کس کا نعرہ لگ رہا ہے یہ سائیکل والے کا ہے یہ کس کا نعرہ لگ رہا ہے یہ ہاتھی والے کا نعرہ لگ رہا ہے یہ کس کا نعرہ لگ رہا ہے یہ گیس چولہے والے کا نعرہ لگ رہا ہے مختلف قسم کے لوگ اپنا پرچم لے کر نکلتے تھے نعرہ لگاتے تھے لیکن جس دن الیکشن ختم ہوا رزلٹ آیا اب جلوس جو نکلا تو صرف ایک نکلا اور جلوس جو نکلا تو ایک نکلا پتا چلا ہارنے والا اگر جلوس نکال دے گا تو کوئی ڈھیلے مارے گا کوئی پتھر مارے گا حکومت اسے گرفتار کرے گی کہ تو
करीम अलैहिस्सलाम पे बावाज़े बुलंद अजमत को पहचानिए। हुसैनियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हुसैनियत किसी हुकूमत की मोहताज नहीं है। और चाहे जिस मजहब, यह हम हुसैन वालों को फख्र है कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और हर मसलक का आदमी हुसैन के दर पर आता है, अपनी जमी खम करता है। गुरु नानक को कौन नहीं जानता? बस ज्यादा देर नहीं लूंगा। गुरु नानक को कौन नहीं जानता? गुरु नानक ने जब मुहर्रम का चांद देखा तो मुहर्रम का चांद देखने के बाद कहा, आओ तुम सबको हुसैन के बारे में बताते हैं। अपने शागिर्दों से कहा, आओ तुम लोगों को हुसैन के बारे में बताते हैं। कहा, ये आप हुसैन का तज़किरा क्यों करते हैं? हुसैन की बात क्यों करते हैं? आप तो खुद ही बहुत मुक़द्दस है, हम आपको खुद ही अकीदत की नजरों से देखते हैं। कहा, ऐसी बातें मत करो। कहा कि नहीं, आपको बताना पड़ेगा। कहा, ये बताओ हम तुम्हारे कौन हैं? कहा, आप हमारे उस्ताद हैं। कहा, अगर हम तुम्हारे उस्ताद हैं तो हम जो कहेंगे उसको मानोगे? कहा, हम अपनी जान से ज्यादा आपको चाहते हैं, आपकी बातों को कभी हम इनकार नहीं करेंगे। कहा, जाओ अपनी बहन से शादी कर लो। कहा, जाओ अपनी बहन से शादी कर लो। कहा, यह मुमकिन नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। कहा, तुम्हें नहीं मालूम, बस हुसैन ने इसी तकद्दुस को बचाया है। हुसैन ने इसी तकद्दुस को बचाया है, इसलिए हुसैन याद किया जाएगा। एक सलवात है दीजिए हज़रत आले मोहम्मद पर। तो रिश्ते पामाल ना होने पाए, उसी तकद्दुस को हुसैन ने बचाया है। हुसैन महात्मा गांधी जैसा सूरमा कहता है, जब हुसैन की तारीख को पढ़ा तो पढ़ने के बाद कहता है, हुसैन जैसे 72 साथी मुझे मिल जाते तो हिंदुस्तान को, हुसैन जैसे सच्चे 72 साथी मुझे मिल जाते तो हिंदुस्तान को 72 घंटे में आजाद करवा देता। अजमत को पहचानिए। हुसैन की अजमत क्या है, हुसैन की बुलंदी क्या है। मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, वरना अजमत हुसैन पर सिर्फ गुफ्तगू की जाती है कि हुसैन की अजमत को पहचानो, हुसैन की बुलंदी को पहचानो कि हुसैन है कौन। बहुत बड़ा पैसे वाला था, उसको खुदा ने एक बेटी दी थी, एक बेटी दी थी, बीमार रहती थी, बीमार रहती थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। अब जो डॉक्टरों ने जवाब दिया तो सिर्फ कहा, अब लेकर जाओ अपने घर और इसका वक्त गिनो, अब इसके पास मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं। घर लेकर के आए, हालात उसके बिगड़ते गए। माँ बाप दोनों बैठ के बेटी की हालात देख रहे थे, कभी आंख बंद करती थी, कभी खोलती थी। बात से बर्दाश्त ना हुआ, उठ करके चला गया। लेकिन माँ तो माँ होती है ना, माँ नहीं जाती, माँ छोड़ करके नहीं जाती। माँ देख रही थी कि बस बिल्कुल आखिरी वक्त आ गया है। इतने में महसूस हुआ कि मेरे घर के दरवाजे से या हुसैन की सदा बुलंद हो रही है। अब जो घर बाहर दौड़कर देखा तो क्या देखा, कोई एक जुलूस चला जा रहा है जो या हुसैन की सदा बुलंद कर रहा है। उसके पीछे एक बीबी है जो कमर खमीदा है। एक मर्तबा कहा, बीबी ऐसा लगता है कि तुम्हारा दर्द और मेरा दर्द एक है। कहा, हाँ बताओ तुम्हारा दर्द क्या है। कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारा भी बेटा कोई मारा गया, मेरी भी बेटी आखिरी वक्त की सांसें ले रही है। कहा, बताओ क्या मामला है। पूरा वाकया बताया। कहा, जाओ वो जो अलम देख रही हो ना, उस अलम के पास चली जाओ, कह दो अब्बास हम तुम्हें तुम्हारी भतीजी सकीना का वास्ता देते हैं, हमारी बच्ची को सेहत अता कर दीजिए। सकीना के सत्ते से वो औरत गई। जाने के बाद अलम को पकड़ करके कहा, अब्बास हम तुम्हें तुम्हारी भतीजी सकीना का वास्ता देते हैं। दुआ मांग कर घर में आई तो क्या देखा, हमारी बच्ची के पास एक सवार खड़ा हुआ है। और जैसे ही आई क्या
बच्ची आंखें खोले हुए है। एक बार तो बच्ची ने कहा, अम्मा ये सवार बहुत अच्छा है, अम्मा ये सवार बहुत अच्छा है। इसने आके जो मेरी पेशानी जब से चूमी है, मेरा सारा मर्ज दूर हो गया है। अम्मा अब तो मैं बात करने के लायक हो गई हूँ अम्मा, लेकिन मैं इस सवार से कहती हूँ कि मैं प्यासी बहुत हूँ, ये पानी उठा करके मुझे दे दे। सवार रो रहा है और कुछ नहीं कह रहा है। एक मरतबा सवार ने कहा, अगर तूने मेरी बेटी को जिंदगी दी है, तूने मेरी बेटी को शिफा दी है, तो क्या तू मेरी बेटी को पानी नहीं दे सकता? अपने हाथों से पानी पिला दे। एक मरतबा सवार ने कहा, अगर मैं पानी पिला सकता तो करबला में सबसे पहले सकीना को पानी पिलाता। मेरे हाथ फुरात के किनारे काट दिए गए। आपकी आवाज गिरिया बुलंद हो गई। अभी मसाइल तमाम नहीं हुआ है, आपकी आवाज गिरिया बुलंद हो गई। रोइए, दिल खोल के रोइए। आज 14 मुहर्रम हो गई, धीरे धीरे ये अय्याम तमाम हो जाएंगे और हमें पता नहीं चलेगा कि अय्याम कब खत्म हो गए। हम जिंदा इसी के लिए हैं चूंकि हुसैन हमारे बादशाह हैं। बस अज़ादारों, बसरे का एक पहलवान था, मजलिस तमाम है। बसरे का एक पहलवान था, वो जो भी उसे दावत देता था, बहुत बड़ा पहलवान था, जो भी उसे दावत देता था उसकी दावत कबूल करके वो जाता था, उसकी तरफ से जंग करता था। और जो जंग में जो माले गनीमत मिलता था, उसकी बेटी बहुत बीमार रहती थी। अपनी बेटी लाता था, अपनी बेटी के इलाज करवाता था। एक रोज जंग से पलट कर आया, उसकी बेटी ने कहा, बाबा मैं बीमार रहती हूँ, आप चले जाते हैं और जब चले जाते हैं तो मुझे बड़ी अजियत होती है। मैंने सुना है करबला में किसी कोई बागी आया हुआ है, माज़अल्लाह नौज़ुबिल्लाह, अगर जो उसको कत्ल कर देगा उसको यजीद इतना इनाम दे देगा कि उसको फिर दोबारा कहीं किसी जंग में कि माले गनीमत की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस सारा सामान रखा जो माले गनीमत लाया था, अब सरजमीन करबला की तरफ निकल पड़ा। सरजमीन करबला पर आया, हुसैन अली असगर की कब्र बना चुके थे। हुसैन मैदान में आ चुके हैं, सबसे आगे खड़ा हुआ है हुसैन पर हमला करने के लिए कि मैं कत्ल करके सबसे ज्यादा इनाम लेकर के मैं चला जाऊं। जैसे हुसैन मजलूम मैदान में पहुंचे, हुसैन मजलूम ने अजीबो गरीब आवाज दे करके नाम लेकर के पुकारा, तू कहां यहां खड़ा है, तू कहां यहां खड़ा है, तेरी बेटी तेरा इंतजार कर रही है, तेरी बेटी तेरा इंतजार कर रही है। एक बार तो घबरा करके कहता है, मैं तो आपसे जंग करने के लिए आया हूं। कहा नहीं, तू जंग में शामिल ना हो। अब वो जब जाने लगा, तो जब वो चल रहा था तो उसकी बेटी ने कहा था, जब जंग तमाम हो जाए तो मेरे लिए एक याकूत की अंगूठी लेते आना। लेकिन जैसे ही हुसैन मजलूम ने नाम लेकर के कहा, तू कहां आया है जंग करने के लिए, और जब जाने लगा कहा, सुन इधर आ। हुसैन ने अपनी अंगूठी उतारी, कहा तेरी बेटी ने अंगूठी की फरमाइश की थी, यह अंगूठी ले जाकर अपनी बच्ची को दे देना, तेरी बच्ची को अब कोई मर्द नहीं परेशान करेगा। बस हजारों मजलिस तमाम है। तारीख ने लिखा है कि जब वाक़यात करबला के बाद जनाब मुख्तार ने क़याम किया और खूली मलऊन से पूछा गया कि बता तूने करबला में क्या जुल्म किया। उसने बहुत सारे जुल्म बताए, लेकिन एक जुल्म जो उसने बताया है, जब मैंने तारीख पढ़ा तो कलेजा कांप गया। कहा जब खैमे जल गए, खैमे जल चुके थे, बीबियां खैमों के दरमियान बैठी हुई थी। इसी दरमियान मैंने एक बीबी को देखा कि कोई एक गठरी अपने सीने से लगाए हुए है। मैंने देखा कोई एक बीबी एक गठरी अपने सीने से लगाए हुए है। मैंने सोचा शायद
ظالموں نے سب کچھ لوٹ لیا ہے، اس بیوی کے پاس شاید کوئی قیمتی چیز رہ گئی ہے، میں نے بڑھ کر کے اس بیوی کو تازیہ میں مارا، اور تازیہ میں مارنے کے بعد ایک مرتبہ جیسی اس بیوی